ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ دو دن بعد جب وہ کمرے میں آیا تو کمرے میں پھیلا سکوت جیسے چیخ چیخ کر اس کی تنہائی کی گواہی دے رہا تھا۔ ایمان ایک کونے میں ساکت بیٹھی تھی، آنکھوں کے نیچے سجن، ہونٹوں پر خاموشی کی مہر اور چہرے پر بے بسی تھی۔ وہ تھک گئی تھی، چلا چلا کر کوئی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تھا۔ 2 دن کی بھوکی پیاسی نڈھال سی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی، نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹایا۔ ایمان نے سر اٹھایا، نیم آنکھیں کھولی، جسم میں طاقت نہیں تھی۔ میری زندگی برباد کر کے اب تمہیں میرے کھانے کی فکر ہے؟ کون ہو تم؟ تو پلیز مجھے جانے دو۔ وہ پھر رونے لگی۔ مجھے جاننے کے لیے تمہارا زندہ رہنا بہت ضروری ہے ڈارلنگ، ابھی تو تمہارے باپ کو تڑپانا باقی ہے، وہ دھیرے سے بولا، اور اس کے الفاظ تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہو گئے۔ دور، گھر جانا، اٹک کر بولتی وہ جھول گئی۔ زید عالم جھکا اسے اٹھا کر اپنے روم میں لے آیا۔ یاد رکھو، یہ نکاح تمہاری سزا ہے، تمہارے باپ کی غلطی کی قیمت، اور ہاں ابھی تو صرف شروعات ہے، بہت کچھ سہنا ہے تمہیں، اس لیے چپ چاپ کھانا کھاؤ، خود کو زندہ رکھو گی تو اچھا ہوگا، ورنہ میں جس طریقے سے تمہیں زندہ رکھوں گا تمہیں وہ یقیناً پسند نہیں آئے گا۔ ایمان کا ہوش میں آنے کے بعد بھی یہی حال تھا، وہ ضد میں کچھ نہیں کھا رہی تھی، جبکہ بھوک سے بے حال تھی۔ زید سخت لہجے میں اسے سمجھاتا، اس کا گال تھپ تھپاتا۔ وہ یہ کہہ کر مڑا ہی تھا کہ ایمان کی لرزتی آواز اس کے قدم روک گئی۔ اگر سزا ہی دینی ہے تو مار دو مجھے، تمہارا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ ایمان روتی غصے میں چلائی، جو تھوڑی بہت ہمت بچی تھی خود میں وہ بھی ختم کر رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو رک گیا، پھر قدم واپسی مڑے، چلتا ہوا اس کے بے حد قریب آتا، جھکا، دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے۔ وہ مکمل اس کی قید میں تھی۔ اب دل اس کی نزدیکی دہشت زدہ روح پر خوف زدہ ہوا، آنکھیں جھک گئی، معنی خیز خاموشی میں دھڑکنوں کا شور تھا۔ مجھے ضد مت دلاؤ مان، میرا غصہ تم سے برداشت نہیں ہوگا، ابھی نرمی دکھا رہا ہوں تو اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، سمجھ آئی؟ یا پھر دوسرے طریقے سے سمجھاؤں؟ ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسا کر جھٹکا دیتا، اس کے کان میں سرگوشی کرتا، اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دبایا۔ وہ سسک اٹھی، تیزی سے سر ہلا کر بات مان لی۔ اگر وہ دور نہ ہوا تو اس کی پاگل ہوتی دھڑکن ضرور بند ہو جاتی۔ کھانا کھاؤ، 2 دن بعد تمہیں میرے ساتھ حویلی جانا ہے، سب کے سامنے تم میری نوکرانی بن کر رہو گی۔ دروازے کی طرف بڑھا، مگر جاتے جاتے اسے پھر دھمکی دینا نہیں بھولا۔ ایمان ماں باپ کی ایک ہی لاڈلی بیٹی تھی۔ اس کا باپ سیاست میں تھا، جس وجہ سے اس کے بہت دشمن تھے۔ زید عالم دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا بزنس ٹائکون تھا، پھر انڈر ورلڈ میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ ایمان کے باپ نے زید عالم کی پھپھو کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا، پھر اسے اپنے کچھ برے دوستوں سے ملا کر اس بیچاری کی زندگی برباد کر دی تھی، جبکہ وہ حق میں نہیں تھا، لیکن اس کا ایک دوست بری نظر رکھتا تھا اس پر۔ وہ دھوکے میں اس کی پھپھو شازیہ کو بلا کر اس کی عزت پامال کر گیا، جبکہ اس کا پورا الزام ایمان کے باپ شبیر احمد پر آ گیا تھا۔ ان سب کھیل میں شبیر احمد نے شازیہ سے جھوٹی محبت سے کب سچ میں کر بیٹھا تھا یہ وہ بھی نہیں جانتا، پر اس کی بربادی کا سن کر اس نے اپنے دوست سے بری طرح بحث کی، لڑائی ہوئی، اس کے بعد ان کے بیچ کوئی تعلق نہیں رہا۔ وہ شازیہ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے پھر کبھی ملنے نہیں دیا اسے۔ کچھ عرصے بعد شازیہ کا اور شبیر احمد کا خفیہ نکاح ہوا، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ شازیہ کی بربادی کی وجہ خود کو سمجھتا تھا، اسی لیے رشتہ تو جوڑ دیا پر سب کے سامنے لانے سے انکاری تھا۔ شازیہ کو لگا اسے انصاف نہیں مل رہا، اس نے کچھ عرصے بعد خودکشی کر لی۔ یہ بات سب کے لیے شوق تھی۔ اس کے 1 سال بعد شبیر احمد نے شادی کر لی، ماں باپ کی ضد میں۔ ایمان کے معاملے میں وہ بہت ڈرتے تھے،
बेटी होने पर उनका दिल बहुत खौफजदा रहने लगा था। ईमान में उनकी जान बसती थी, जबकि दूसरी तरफ शाजिया की मौत, उसके अपने भतीजे के सामने यही सब हुआ था। तब वो 8 साल का था। अपने घर में मातम जैसा माहौल देखा। उसकी एक ही पुप्पो थी, शाजिया, अपने घर की लाडली बेटी। जैद आलम ज्यादातर हॉस्टल में ही रहकर पढ़ाई करता था। वो बहुत कम आता था घर। जब आता तो सबकी जान बसती थी उसमें, खास तौर पर उसकी पुप्पो की। जैद आलम में उनकी जान थी। वो जानता था शाजिया शबीर अहमद को पसंद करती है। उस रात मरने से पहले उन्होंने अपने भतीजे से अपने दिल का हाल सुनाया। वो खुद इन सब का जिम्मेदार शबीर अहमद को समझती थी, क्योंकि उन्हें धोखा दिया था मोहब्बत में। तब से जैद आलम का एक ही मकसद था, शबीर अहमद को बर्बाद करना। वो किसी तरह उसे वही तकलीफ देखकर गुजारना चाहता था जो उन सब में सही थी। जब उसे पता चला उसकी जान अपनी बेटी में है, तब उसे यही बेहतर लगा कि बाप के गुनाह की कफारा बेटी अदा करेगी। उसे कॉलेज से उठवा लिया। अब वो इस देव की कैद में थी। वही दूसरी तरफ शबीर अहमद के पैरों तले से जमीन निकल गई। दिन रात बेटी की तलाश में वो पागल होते जा रहे थे। उनकी तबीयत खराब हो गई थी बेटी की गुमशुदगी से। उनकी बीवी भी परेशान थी, लेकिन कहीं पता नहीं चला कि आखिर वो है कहां पर। एक पल को शबीर अहमद को लगा किस्मत ने उससे बदला लिया है। उसने भी एक खेल में लड़की की जिंदगी बर्बाद की थी। क्या वो आज उसकी कीमत चुका रहा था? रात के सन्नाटे में कमरा हल्की रोशनी से मुनव्वर था। ईमान खिड़की के पास खड़ी थी। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आंखों में खालीपन और दिल में दर्द का समंदर। पीछे दरवाजा खुला, कदमों की चाप सुनाई दी तो उसने खुद को और सख्ती से लपेटा। उसका खौफ फिर हावी हुआ उस पर। कितनी देर से खड़ी हो, सो क्यों नहीं जाती? जैद थका हुआ था, इसीलिए मजीद बहस की हिम्मत नहीं थी उसमें, मगर गरूर अब भी मौजूद था लहजे में। नींद तो तब आती है जब दिल को सुकून हो, जब दिल बेसुकून हो, रूह बेबस हो, कैदियों को नींद नहीं आती। ईमान ने बिना पलटे सर्द लहजे में कहा। वो आगे बढ़ा, चंद कदम के फासले पर रुका, फिर आहिस्ता से बोला, मैंने तुमसे कहा था चुपचाप हाँ कह दो, वरना मजबूर कर दूंगा, और तुमने मुझे मजबूर किया। अब इसी कैद को अपनी आखिरी मंजिल बनाओ और सुकून तलाश करो। वो गुस्सा जब्त करता हुआ बोला। ईमान ने पलट कर उसे देखा। आंखों में आंसू थे, लहजे में गुस्सा। मैंने अपनी मर्जी से कभी तुम्हारा नाम नहीं लिया। तुमने जबरदस्ती निकाह किया तो ये ताल्लुक तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं। प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो। वो जितनी खुद को मजबूत जाहिर करती हिम्मत हार गई, फिर रोने लगी। वो लम्हा भर को साकित हुआ, जैसे उसकी आंखों में कुछ टूटा हो, फिर आगे बढ़कर उसके मजीद करीब आ गया। वो पीछे खिड़की से जा लगी। दोनों के दरमियान चंद इंच का फासला था। उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती धड़कन तेज हुई थी। वो उसकी लौ देती निगाहों को देख नहीं सकती थी। नजरें झुका गई, पर वो पीछे नहीं हटा। मैं एक संगदिल इंसान हूं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुम्हारा चेहरा मुझे तुम्हारे बाप की याद दिलाता है, जिसने मेरी आनी को बर्बाद किया। वो उसके चेहरे के करीब झुककर बोला, मगर उसकी आवाज में अब दर्द था, नफरत में लिपटा हुआ दर्द। ईमान ने नम आंखों से उसे देखा। तुम इंतकाम में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा कि जिस शख्स से तुम बदला ले रहे हो वो बेकसूर भी तो हो सकता है, लेकिन जो चीज जबरदस्ती ली जाए वो कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। वो पल भर को ठहरा, जैसे उसके अल्फाज ने दिल को चीर दिया हो, मगर उसने खुद को संभाला। सर्द लहजे में बोला, इस निकाह के बंधन से तुम चाहो भी तो आजाद नहीं हो सकोगी ईमान, क्योंकि अब तुम मेरे नाम से जुड़ी हो, जिसे मैं बीवी नहीं नौकरानी का दर्जा दूंगा। और वो तेजी से पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अपनी पुप्पो को याद आने पर उसके अंदर दर्द की लहर दौड़ गई। वो चाहता तो ईमान को तकलीफ दे सकता था, पर उसे अभी भी ये सब इतनी जल्दी नहीं करना था। एक जंग वो खुद से भी लड़ रहा था। ईमान फिर मुंह पर हाथ रखकर लो पड़ी। अगली सुबह सूरज की किरणें ईमान के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुली। वो चौंक कर सीधी हो बैठी। आंखों में उलझन, माहौल में अजनबियत और दिल में बेचैनी थी। बिस्तर के दूसरे किनारे पर वो मौजूद नहीं था, जिसका मतलब था वो रात कमरे में नहीं आया। वो शुक्र कर उठी।
फ्रेश होती बाहर आई। उसे बहुत भूख लगी थी। 4 दिन से वो यहाँ कैद थी। 2 दिन बाद तो खाना दिया था। जैद आलम उसे दिन में 1 बार खाना देता जब वो फ्लैट पर आता। बाहर आई तो देखा फ्रिज में कुछ नहीं था। भूख की शिद्दत से पेट में चूहे दौड़ रहे थे। एक तो उसे कुछ बनाना नहीं आता था, करे तो क्या करे। उसे फिर रोना आया। घर वालों की शिद्दत से याद आई। थोड़ी देर बाद वो आया तो ईमान सोफे पर रोती हुई। कब आंख लगी उसे अंदाजा ही ना हुआ। जैद ने उसके चेहरे पर पानी फेंका जब वो हड़बड़ाकर उठी। क्या हुआ? खाना क्यों नहीं बनाया अभी तक? मुझे कुछ नहीं आता बनाना। उसके सर्द लहजे में पूछने पर वो अपनी तेज धड़कनों को संभालती हुई शर्मिंदगी से बोली। जैद के अंदाज से वो बहुत खौफजदा रहने लगी थी। मैं इस वक्त कोई नखरे बर्दाश्त करने की मूड में नहीं हूं ईमान। चुपचाप उठो और खाना बनाओ, वरना सजा क्या होगी ये सुनकर सुर्ख हो जाओगी। जैद की मायने खेज बात पर वो सुर्ख हो गई। उसकी सख्त गिरफ्त को महसूस करती वो दर्द से सिसकी। जैद ने उसके गुलाबी चेहरे को ठोड़ी से पकड़ा और ऊपर उठाया और उसकी सहर अंगेज नम खूबसूरत सुरमई आंखों में अपनी भूरी आंखों को गाड़ते हुए कहा, ना सुनने की आदत नहीं है मुझे ईमान। उसे वहीं छोड़कर रूम में चला गया। वो फिर अपनी किस्मत को रोती लरसते वजूद को घसीट कर किचन में ले आई। खुद की बेतहाशा भूख पर भी वो कुछ ना बना सकी। अब उसके लिए क्या बनाएगी? उसे सच में नहीं आता था। उसके फरिश्तों ने कभी किचन में कदम नहीं रखा था। जैद के खौफ से वो पूरा किचन फैला गई, मतलब बर्बाद कर गई, लेकिन बना फिर भी कुछ नहीं। एक तो उसके पास मोबाइल नहीं था, जो थोड़ा बहुत उसी में देख लेती। ईमान को रोने के अलावा कुछ नहीं आया। एक तो हाथ पैर इतना गहरा कट लग गया था, पर जैद के खौफ से वो दर्द और डर से रो पड़ी, जबकि वो शदीद गुस्से से अपनी भूरी आंखों में सुर्ख डोरे लिए उसे घूर रहा था। कैसे किचन का हाल कर दिया था इस लड़की ने। खाना कहाँ है? मुझे नहीं आता बनाना। प्लीज, हो गई तुम्हारी बकवास। अब सुनो मेरी बात, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। यहाँ तुम मेरी नौकर हो, समझी? मेरे सारे काम तुम्हें करने होंगे। सीख लो, वरना वो हाल करूंगा तुम्हारा बाप भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। आगे बढ़कर उसका बाजू अपनी सख्त गिरफ्त में लेता नफरत के लहजे में कहा कि अचानक जैद की नजर उसकी कटे हुए हाथ पर पड़ी। ये कैसे लगा? वो बेसाख्ता पूछ बैठा। वो कुक खाना। बस चुप। ईमान ने चौंक कर उसकी आंखों में देखा जब वो अचानक नरम रवैया अख्तियार कर गया। क्या था वो शख्स? उसे अपने हाथ पर दर्द होने लगा जब उसका झुलसा देने वाला लम्स महसूस किया। तो तुम्हें काम यहां नहीं कहीं और ले जाकर सिखाना पड़ेगा। याद रखना, वहां से भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना सबसे पहले तुम्हारे बाप की लाश मिलेगी। ईमान, मुझे चैलेंज मत करना। मैं बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान हूं, लिहाज मेरे अंदर जरा भी नहीं। प्लीज, दर्द। ये दर्द उस दर्द के आगे कुछ नहीं जो हम सह चुके हैं। उसके हाथ पर पट्टी करता सर्द संगीन लहजे में बोलता। अचानक गुस्से में उसके हाथ पर दबाव दिया तो वो चीख उठी। दर्द से आंसू निकल आए, पर उसे कहां परवाह थी। वो फिर दर्द से और भूख से बेहाल हो गई थी। जैद गहरी सांस लेता एक नजर उसके नाजुक वजूद पर डाली। अगले दिन उसे जबरदस्ती समझा धमकाकर हवेली ले आया। जैद कौन है ये प्यारी बच्ची? उसकी मां ने हैरत से इसके साथ खड़ी डरी सहमी लड़की का पूछा। एक पल को उनकी आंखें नम हुई। इस लड़की की खूबसूरती देखकर उन्हें कोई शिद्दत से याद आ गया था। प्यारी बच्ची मुलाजमा है, आज से यही काम करेगी। बेचारी यतीम है, कोई नहीं था इसका, तो मैं यहां ले आया। अब आप इसे काम सिखा दे। उसके लबों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट आई। तंजिया अंदाज में बोलता एक निगाह ईमान पर डाली। ईमान तड़प उठी उसकी बात से। इसके माँ बाप होने के बावजूद भी वो उसे यतीम बना गया। उसका दिल चाहा जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसके गले में आंसुओं का फंदा अटक सा गया। आज उसके बाप पर कातिलाना हमला भी तो कराया था उसकी आंखों के सामने। उसकी संगदिली पर दिल में शदीद दर्द की लहर उठी थी। वो चाहकर भी जबान नहीं खोल सकती थी। एक नजर उस पर डालता वो अपने रूम में चला गया।
जबकि उसकी माँ की हमदर्दी पर इसे रोना आया। थोड़ी देर बाद वो हवेली के पिछले बने क्वार्टर में थी। उसे बार बार उसका जुमला याद आ रहा था। कैसे आज आते हुए उसने अपने बाप को देखा। दिल शिद्दत से मिलने को मचला, लेकिन उसने जो हाल किया था वो डर गई थी जैद आलम से। वो कुछ भी कर सकता था। जब उसी के सामने उसके बाप पर गोली चला सकता था तो कोई बैद नहीं थी उस इंसान से। ईमान की आंखों से आंसू किसी आबशार की तरह बह रहे थे। वो किस किस चीज पर रोती। उसकी जिंदगी ही बर्बाद कर दी थी इस शख्स ने। प्लीज बाबा मुझे यहां से ले जाएं। अल्लाह पाक मेरी मदद करें, मुझे यहां नहीं रहना, कोई तो मेरी मदद करे प्लीज। वो बेबसी से कहती हाथ में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। पहले जबरदस्ती निकाह किया, अब उसे नौकर बना दिया। वो अब सही मायनों में खुद को बेसहारा समझ रही थी। कोई नहीं था जो जरा रहम खाता उस पर। आज जब वो उसे ले आ रहा था तो गाड़ी में बेबस बैठी आंसू बहा रही थी। तभी उसकी नजर बाहर दूसरे रोड पर अपने बाबा पर पड़ी। बाबा बाबा छोड़ो मुझे, बाबा। वो चीखती गाड़ी में बैठते ही अपने बाबा को आवाज देने लगी। अचानक उसे ख्याल आया, बाप को देखकर हिम्मत जाग उठी थी। वो गाड़ी से उतरकर तेजी से भागने लगी थी कि उसी वक्त एक मजबूत हाथ ने उसे अपने शिकंजे में लिया। जैद ने उसके बाप को देख लिया था। कुछ काम से गाड़ी रोकी थी और वो लॉक करना भूल गया था। तभी ईमान ने ऐसी जुर्रत की जिसकी सजा वो सोच बैठा था। उसे अपने हिसार में लिए रोकने लगा। वो जी जान से खुद को छुड़वाने लगी। प्लीज छोड़ो मुझे, मुझे बाबा के पास जाना है। फिर वो चीखती। इस बार उसका मुंह बंद करता जैद आलम का भारी हाथ क्या दबाव पर ईमान को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। उसके बाप के पास शायद ही आवाज गई हो। वो दूर था, दूसरे रोड पर। अब अगर तुम चिल्लाई तो देखना क्या करता हूं। कहा था ना तुम्हें ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, लेकिन शायद तुम्हें मेरा रूप देखना है एक बार। अगली बार ऐसी गलती नहीं करोगी तुम। जैद गुस्से में कहता उसे बेदर्दी से गाड़ी में बिठाकर तेजी से दूसरी साइड से आकर गाड़ी लॉक कर दी। वो रोती अपनी जिद्दोजहद करने लगी। ईमान, आई सेड स्टॉप क्राइंग नाउ सी। नहीं, ये क्या कर रहे हो? डेमो क्लास दिखा रहा हूं। मुझे गुस्सा दिलाने और धोखा देने की सजा क्या हो सकती है, ये आज अपनी आंखों से देख लो। दोबारा 100 बार सोचोगी ऐसी गलती करते हुए। वो गन लहराता उसे डराकर, फिर यकदम गन का रुख उसके बाप की तरफ करता। ईमान की जान निकाल गया। अचानक उस साइलेंट गन से गोली चली और ईमान की चीख बेसाख्ता थी। नहीं मेरे बाबा, तुमने क्या किया? क्यों मेरे बाबा को मार दिया? छोड़ो मुझे, बाबा को कुछ नहीं होगा। वो पागलों की तरह चीखती उसे मारने के दर पे थी। जैद ने उसके दोनों हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लेता काबू करने लगा। ये बस ट्रेलर था। अब चिल्लाई अपने बाप के पास जाने की कोशिश की तो अगली बार गोली सीधा उनके सीने में लगेगी। अभी तो सिर्फ बाजू में लगी है तुम्हारी वजह से। नहीं, मेरे बाबा को कुछ मत करना। मैं बात मानूंगी, जो कहोगे वो करूंगी, बस ये नहीं करना दोबारा। गोली लगने पर उसके बाप के पास सब लोग जमा हुए। उन्हें जल्द अस्पताल ले जाया गया, जबकि जैद ने ये गोली नहीं चलाई थी, कोई और था टारगेट। वो जानता था उसे गोली लगने वाली है। ईमान को डराने का अच्छा मौका मिल गया था उसे। वो खौफ में बेहोश हो गई। एक नजर उस पर डालता उसे हवेली ले आया। यहां वो उसे खूब बदला ले सकता था। जैद, कौन है ये लड़की? मैं जानती हूं तुमने जो कहानी सुनाई है वो झूठी है, अब सच बताओ। वो माँ थी, कैसे ना पहचान पाती बेटे की नजरों को, जो आज भी एक दुख जहर असर थी। मामा प्लीज, उससे कोई हमदर्दी ना करें, वो दुश्मन की बेटी है। उस शख्स को एहसास दिलाना लाजिम है किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद करना कैसा लगता है। जैद थककर सोफे पर बैठता, माँ का हाथ पकड़ते साथ बैठा, फिर उनकी गोद में सरक कर लेट गया। वो सो जाना चाहता था सुकून से, लेकिन ये उसके लिए बहुत मुश्किल था। बचपन से अब तक वो यही सोचता आया था, शबीर अहमद से बदला लेने के बाद उसे सुकून मिल जाएगा। पर ईमान की मासूमियत, उसका रोना इसे डिस्टर्ब कर रहा था। वो बहुत छोटी थी, उसके लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था।
نہ جانے کیوں زید عالم اس کی تکلیف محسوس کرنے لگا تھا۔ جب جب وہ اس کے قریب جاتا اس کا ڈرنا اسے سکون بھی دیتا تو کبھی بے چین کر دیتا۔ زید وہ بہت معصوم ہے۔ میری پھپھو بھی معصوم تھی۔ اس کی ماں کو وہ معصوم ایمان بہت پسند آئی تھی۔ اس کا بیٹا کیا کر رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، پر اس لڑکی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، خاص طور پر اپنے بیٹے کی وجہ سے۔ لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ اس کا بیٹا کسی کو اتنی تکلیف نہیں دے گا۔ زید عالم جب خود کو نرم رکھنے کی کوشش کرتا اسے اپنی پھپھو کا چہرہ یاد آ جاتا۔ وہ چاہ کر بھی ایمان سے نرم رویہ اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ تم زید عالم ہو، وہ شبیر احمد تھا۔ اب تم بہتر جانتے ہو تمہیں کیا بننا ہے۔ اس کی ماں کے لفظوں کی گہرائی وہ اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ ماما، میں نے زید عالم بن کر اسے ایمان شبیر سے ایمان زید بنا دیا، کیا اب بھی کوئی فرق کریں گی آپ؟ وہ شکوہ کنا ہوا۔ پھر زید عالم کی بیوی نوکر بن کر کیوں آئی ہے؟ میں ظالم ساس نہیں بن سکتی۔ اس کی ماں نے پیار سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے شرارت سے کہا، ماما پلیز اس کے ساتھ کوئی رحم دلی نہیں، ورنہ وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہے۔ آپ کو اپنے بیٹے کا ساتھ دینا ہوگا، بہو کا نہیں۔ یہ بات کسی اور کو نہیں پتا، پلیز ماما۔ وہ ناراض ہوتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارے بابا سے میں جھوٹ نہیں بول سکتی، میں بعد میں سب کو بتا دوں گا، ابھی کچھ دن ٹھہر جائیں، بس آپ اسے کام سکھائیں، اسے کچھ نہیں آتا۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اپنے کپڑے لیے واش روم کی طرف جاتے قدم ٹھہر گئے۔ بیوی کے ہاتھوں کا کھانا چاہیے نواب کو، ماں سے بور ہو گئے ہو؟ ماں سے بور نہیں ہوا، بس کچھ نیو ٹیسٹ کرنا چاہیے کبھی کبھی، ایک موقع دیتے ہیں آپ کی بہو کو۔ زید ہلکا مسکراتا ماں سے شریر لہجے میں کہا۔ حویلی میں سب اس معصوم لڑکی کو دیکھتے حیران ہوئے تو کچھ اس کی خوبصورتی سے حسد کرنے لگے۔ سب کو بتایا گیا کہ زید نے رحم کھا کر اسے نوکری پر رکھا ہے، وہ اسی کے احسان تلے دب کر اس کا کام کرے گی۔ زیادہ تر یہ اس کی ماں نے سب کو بتایا، ورنہ اس معصوم سے سب جانوروں کی طرح کام لیتے۔ بڑوں کو وہ کسی کی یاد دلاتی تھی، جبکہ ایمان وہاں اتنے لوگوں کو ایک ساتھ دیکھتی گھبرا گئی تھی۔ وہ کبھی جوائنٹ فیملی میں نہیں رہی تھی، اس کے پاس بس ماں باپ تھے، باقی رشتے کم ہی دیکھنے کو ملے تھے۔ یہاں تو 3 بھائی ایک ہی گھر میں رہتے، ان کے بچے سب ایک ساتھ، اتنے لوگوں کا ساتھ اسے اچھا بھی لگا تو ڈر بھی۔ کچھ اچھے سے پیش آئے تو کچھ بری طرح سے اسے نوکر کی طرح ٹریٹ کرنے لگے۔ لیکن ان سب میں اگر ایمان کو کوئی پسند آئی تو وہ زید عالم کی ماں تھی، جو محبت سے پیش آتی، اس کا خیال رکھتی تھی۔ آنٹی، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، میں کیا کروں؟ پریشانی سے کھڑی ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتی وہ بمشکل بولی۔ ہتھیلیوں کے ساتھ ساتھ اب چہرے پر بھی پسینہ آنے لگا تھا۔ زید کا خوف پھر حاوی ہوا، کہیں وہ پھر غصہ نہ کرے، اس کی سزا اس کے بابا کو نہ ملے۔ آپ پریشان کیوں ہوتی ہو بیٹا؟ آؤ میں تمہیں سکھاتی ہوں۔ نہیں، آپ کام کریں گی تو وہ غصہ ہوں گے۔ وہ ڈر سے رونے لگی۔ ایمان کا وجود ہلکا سا کانپ رہا تھا، اسے کل سے بخار تھا، پر کون جانتا تھا، کون اپنا تھا جسے وہ بتاتی۔ اسی پل زید کچن میں آیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ سنو، تم چائے بنا کر روم میں لاؤ، پھر صفائی کرنی ہے تمہیں میرے کمرے کی، جلدی۔ زید ماں سے ملتا ایک نگاہ پریشان کھڑی ایمان پر ڈالتا حکم دے کر چلا گیا۔ ایمان کا دل کیا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، کاش وہ یہاں سے غائب ہو جاتی۔ ادھر آؤ، میں بتاتی ہوں کیسے بناتے ہیں، پھر تم سیکھ جاؤ گی۔ زید کچھ نہیں بولے گا، اسی نے کہا ہے میں تمہیں سکھاؤں گی۔ وہ اتنی محبت پر آنسوؤں پر ضبط کرتی ہاں میں سر ہلا گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے روم کے باہر کھڑی اجازت کیا انتظار کر رہی تھی کہ اندر سے آواز آئی۔ اپنے لرزتے وجود کو گھسیٹ کر اندر لائی۔ وہ جان پوچھ کر مصروف شو کر رہا تھا، جبکہ ایمان کے لرزتے ہاتھوں میں چائے دیکھتا ایک نگاہ اس پر بھرپور ڈالی۔ وہ رات سے روئی ہوئی لگ رہی تھی، معصوم چہرہ گلابی ہو رہا تھا، چھوٹی سی ناک لال تھی، آنکھوں میں ہلکی سرخ رونے کی وجہ سے، سادہ جوڑے میں بال کچھ بکھرے ہوئے، وہ اس حالت میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوپٹہ کاندھے پر لٹکا ہوا، زید کے ماتھے پر بل پڑے، یہ بھی اسی کے دیے گئے کپڑے تھے جن میں دوپٹہ لینے کی سختی اسی کی تھی۔ ایمان گھر میں ہمیشہ نارمل ٹراؤزر شرٹ
ऐसे कपड़े पहनती थी। वो बहुत कम शलवार कमीज और दुपट्टे वाले कपड़े पहनती थी। वो गुस्से में उठा, उसकी तरफ बढ़ा। ईमान अचानक उसके बदलते तासुर से घबरा कर दूर हुई। मैंने कुछ नहीं। श्श, क्या सिखाया था? दुपट्टा सर पर लेना है, बाल बंधे हुए होने चाहिए। दोबारा अगर तुम्हें ऐसे घूमते देखा तो जान ले लूंगा तुम्हारी। समझ आई बात? जैद के करीब आने पर वो खौफजदा होती, फिर अपनी गलती ढूंढने लगी। उसे लगा वो फिर किसी बात पर सजा देगा। उसकी बात पर ईमान सुर्ख चेहरा झुका गई। शर्मिंदगी से जैद की नजदीकी से दिल तेज धड़क रहा था। वो घबराती हुई दुपट्टा ठीक करने लगी, लेकिन फिर रुक गई। वो दूर होगा तो सही करेगी। जैद वही पास खड़ा उसकी घबराहट से महसूस होता उसकी धड़कनों का शोर सुन रहा था, जो उसके खौफ की निशानी थी। ईमान का हल्का ररसता वजूद, घनी पलकों का झालर नीचे झुलका हुआ, वो मुकम्मल हसीन थी। जैद आलम का दिल पहली बार किसी के लिए यूं धड़का था। किसी को छूने की चाह शिद्दत से दिल में जागी। वो झुका, उसके कान के पास। ईमान जब्त से आंखें मीच गई। उसका गाल जैद के गाल से मस हो रहा था। अगर वो मजीद यूं ही खड़ा रहा तो वो जरूर गिर जाएगी। इसी तरह मेरी बात मानती रहोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब जल्दी से सफाई करो, फिर जाओ। वो कहता उसके सुर्ख गाल पर निगाह डालता दूर हुआ। उसे महसूस करने की ख्वाहिश को झटक कर वो वापस अपनी जगह पर बैठा। ईमान अपना रुका सांस बहाल करती खुद को संभालने लगी। जिंदगी में पहली बार कोई मर्द उसके इतना करीब आया था। कुछ उनके बीच हलाल रिश्ते का असर था। वो जितना जालिम उसके दिल में अपना खौफ डालता, पर उसकी नजदीकी पर अपनी महक को छुपा ना सका। ईमान को चक्कर आ रहे थे। बुखार की शिद्दत रात से अब कम थी कि फिर उसे महसूस होने लगा वो कमजोर महसूस करने लगी थी। कल रात से उसने ठीक से कुछ खाया भी नहीं था। उसकी सुस्त रवि से काम करते हाथ जैद आलम बखूबी देख सकता था। उसे एक पल को लगा ईमान की हालत समझने में। अभी वो समझता कि ईमान ने चकराता सर थाम कर खुद को गिरने से बचाने के लिए कोई सहारा ढूंढा, लेकिन उससे पहले दो मजबूत बाहों के हल्के में नीम बा आंखों से देखती होश खो बैठी। शिट! ईमान, आंखें खोलो। ईमान! जैद ने उसे उठाकर बेड पर लेटाया। उसका बुखार चेक किया तो बहुत था। वो अपने लब भेंच गया। क्या करूं तुम्हारा ईमान? क्यों मेरे जब्त का इम्तिहान ले रही हो? गुस्से में उसके ऊपर झुके उस बेहोश वजूद पर गुस्सा कर रहा था। वो सबके सामने किसी को बुला भी नहीं सकता था। थोड़ी देर उसकी खिदमत करता, थक हार कर अपनी माँ को बुलाया। वो नाराज होती बेटे से उस मासूम का ख्याल रखने का कहने लगी। प्लीज मामा, अब क्या आप मुझे घूरती ही रहेंगी? वो नाराज हुआ। कब से माँ की घूरी में था। शुक्र करो घर में बहुत कम लोग हैं जो मसरूफ हैं, वरना पता चलता तुम्हें। और ये क्या हाल बना दिया मासूम बच्ची का। मामा, क्या ये भी मेरा कसूर है? इसे बुखार होना? यार हद है। मैडम को बेहोश होना बहुत पसंद है। जब से आई है यही काम बहुत अच्छे से कर रही है। जैद को गुस्सा ही आ गया। अब ये भी उसका कसूर कि वो बीमार हुई। उसकी माँ को जरा उसे हमदर्दी क्यों ना हुई? ये सारी मोहब्बत ईमान क्यों ले रही है? अब वो थोड़ा जेलिस हुआ। जैद आलम, वो बीमार है, गुस्सा मत करना वरना मार खाओगे। मैंने थोड़ा बहुत खिला दिया है, और हाँ, खबरदार उसे नीचे भेजा। वैसे भी तुम्हारे कमरे में कोई नहीं आता। सारी रात देखना उसे यहीं पर। अगर उस मासूम बच्ची को कुछ भी हुआ तो माफ नहीं करूंगी मैं, याद रखना। माँ धमकी देकर चली गई। वो हैरत अंगेज तौर पर उन्हें देखने लगा। अब वो जी भरकर पछताया था इस बला को यहां लाकर। गुस्से में टहलता वो सारी रात सो ना सका। उसके पास सिरहाने बैठा, कब लेटकर सो गया पता ही ना चला। ईमान की वो बेहद नजदीक था। जब सुबह ईमान की आंख खुली तो खुद उसके मजबूत हिसार में बेहद नजदीक पाकर वो बौखला गई। उसका हाथ हटाकर तेजी से दूर होती अपना चेहरा मोड़ गई। ईमान जैद आलम की नजरों से छुप ना सकी। इससे पहले कि वो बेड से उठ खड़ी होती, जैद ने खींचकर उसे पास लेटाया। वो चीखती उससे पहले जैद ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। शोर नहीं करना, सब सो रहे हैं। तुम इस वक्त मेरे कमरे में हो। अगर किसी को पता चला तो तुम जानती हो मुझे। जैद उसके ऊपर झुका कह रहा था और ईमान फटी निगाहों से देखती
शर्म से लाल पीली होती नजर झुका गई। धड़कनें बेतरतीब हुई। उसके चेहरे पर बिखरते रंग देखता वो एक पल को ठहर गया। ईमान, अपना ख्याल रखो, वरना इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। और ये मैं तुम्हें अभी एक छोटी सजा देकर बताऊंगा मेरी बातों को सीरियस कैसे लेना चाहिए। जैद पूरा उस पर झुका हुआ था। ईमान उसकी कुर्बत में सांस रोके हुए थी। दिल खौफ से धड़का। अब क्या सजा होगी? जैद उसकी आंखों में अपने लिए खौफ देख सकता था। अचानक उसके मुंह से हाथ हटाकर एक गुस्ताखी करता। अपने दिल में आई ख्वाहिश को दबा नहीं पाया तो ईमान साकित रह गई। उसका पूरा खून चेहरे पर सिमट आया था। गहरे गहरे सांस लेती वो दूर हुई। जैद उसे वहीं छोड़कर वॉशरूम में घुस गया। ईमान जितनी तेजी से भाग सकती थी भाग गई। खुद को सबकी नजरों से बचाती वो अपना रुका हुआ सांस बहाल करने लगी। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, जैसे अभी बाहर निकल आएगा। जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ एहसास महसूस किया था उसने। वो लम्स जिसमें शिद्दत थी, उसे बार बार खुद में महसूस होने लगा। अगले 2 दिन तक वो जैद आलम से दूर रही, बल्कि छुपती फिर रही थी। शायद वो भी फिलहाल नहीं देखना चाहता था। इस वक्त उसे न जाने क्या हुआ था, वो बेख्तियार हो गया था। जैद की माँ दोनों की हालत देखती खूब हंसी कंट्रोल करने लगी, जबकि ईमान तो उनसे नजरें नहीं मिला पा रही थी और जैद शिकवा को निगाहों से देखता उन्हें। इन्हीं की वजह से तो हुआ था ये सब। फिर कुछ दिन बाद सब अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए और ईमान वो पहले से ज्यादा बदल गई थी। उसे सारे काम करने आ गए थे। जैद बहुत कम दिखाई देता था आजकल, वो बहुत मसरूफ था। जबकि उन सब में एक चीज ईमान के साथ चेंज हुई थी, वो था उसका दिल। यहां सबके साथ लग गया था तो साथ ही किसी और का भी ख्वाहिशमंद हुआ। वो खुद हैरान थी अपनी कैफियत पर। खुद को बहुत डपटा, पर दिल पर क्या इख्तियार। उसने अपनी जिंदगी कबूल कर ली थी। शायद यही उसका नसीब था। अपने बाबा की जिंदगी के लिए दुआ गो थी। जैद की माँ ने उसे सच बता दिया कि जैद क्यों इतना गुस्सा करता है, दूर भागता है। ईमान हैरान हुई। उसकी माँ सब जानती थी फिर भी मोहब्बत देती थी, जबकि वो दुश्मन समझता था। ईमान का दिल भर आया। उसे समझ नहीं आ रही थी वो कहाँ जाए, क्या करे, कौन सच्चा है कौन नहीं। आज उसने सोच लिया था वो जैद आलम से अपने हर सवाल का जवाब मांगेगी। कब तक वो उसे नौकर बना रखेगा? अब उसे गुस्सा आने लगा था। देखो जैद, मैं हमारी शादी की शॉपिंग खुद करूंगी। वैसे ही तुम्हें फुर्सत ही नहीं, हर वक्त मसरूफ रहते हो। अब तो हमारी डेट फिक्स हो गई है, क्या अब भी ऐसा करोगे? ईमान सबको चाय दे रही थी। उनकी बातों को गौर से सुनते बेइख्तियार उसकी निगाह उस दुश्मने जान से टकराई। नजरों का कमाल का तसादम हुआ था। जैद के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। जब वो नजरें चुरा गई तो वो उसे ही देख रहा था। एक शिकवा को निगाह अपनी सास पर डालना नहीं भूली थी, जो खुद नजरें चुरा बैठी थी। वो इसी घर में रहती थी, लेकिन ये बात उसे पता नहीं चली थी, जबकि सबा की उससे कभी नहीं बनी। आज पता चला वो उसकी बचपन की मांग थी। अचानक उसके हाथ पर गर्म चाय गिरी। वो हल्की चीख से दूर हुई। जैद वैसे ही बैठा रहा। उसकी माँ पास आती उसे किचन में ले जाने लगी। वो उनका हाथ छुड़वाकर अपने कमरे में भागी। दरवाजा बंद करती शिद्दत से रोने लगी। हाथ की जलन से ज्यादा उसे दिल में दर्द हो रहा था। गुस्सा इतना आया कि सब तहस नहस कर दे। वो क्या समझता था इसकी जिंदगी कोई खिलौना है? रात ईमान उसके कमरे में चाय देने गई। बगैर कुछ बोले वापस मुड़ी थी कि जैद ने कलाई से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और वो उसके सीने से जा लगी। हाथ कैसा है तुम्हारा? जख्म देने वाले मरहम लगाने का नहीं पूछते, छोड़े मुझे। गुस्से में आंसुओं को जब्त करती वो दबे गुस्सीले लहजे में बोली थी। चेहरा बिल्कुल झुकाया हुआ था। वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी उसके सामने। खुद को छुड़वाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। हाथ में जलन होने लगी। उसने कोई दवा नहीं लगाई थी। बस कर दो, इतनी सी जान है, थक जाओगी। मैं छोड़ूंगा तो वैसे भी नहीं। आप शादी कैसे कर सकते हैं? ईमान ने शिकवा किया और आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों, मैं कोई अनोखा हूं? जैसे सब करते हैं वैसे ही करूंगा। क्या मैं शादी नहीं कर सकता? वो नॉर्मल हल्के लहजे में बोलता। ईमान को बुरा लगा। फिर मुझे जाने दे, तलाक दे। वो गुस्से में बोली। लगता है बहुत टाइम से कोई सजा नहीं मिली तुम्हें, फिर जबान चल पड़ी है।
اب تو بہت مزے کی سزا سوچی ہے تمہارے لیے۔ باقی لفظ منہ میں رہ گئے۔ وہ اسے گھما کر دیوار سے لگاتا جھکا۔ ایمان تڑپ اٹھی اس کے حصار میں۔ تھوڑی دیر بعد اس کا بکھرا سراپا دیکھتا گہرا مسکرایا۔ دوبارہ طلاق کا لفظ منہ پر آیا تو یہ سزا یاد رکھنا۔ ایمان روتی رہی۔ تم میرے لیے صرف دشمن کی بیٹی ہو، تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ ہمارے یہاں خاندانی لوگ رشتہ جوڑتے ہیں۔ آج سے تم صبا کا خاص خیال رکھو گی اور میری شادی کی تیاری بھی کرو گی۔ ایمان کی بڑی سرمئی آنکھوں میں دیکھتا اس کے آنسو صاف کرتا گال تھپ تھپا کر چلا گیا۔ وہ وہیں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ محبت میں ہوئی تو کہاں جہاں کوئی اپنا نہیں۔ وہ خود سے نفرت کرنے لگی۔ کیوں اس ظالم شخص سے محبت ہوئی اسے؟ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب سے اسے حقیقت کا علم ہوا، اس کی ساس نے ساری بات بتائی، تب اس نے خود کو شازیہ کی جگہ رکھتے سوچا تو روح کانپ اٹھی۔ اس کا باپ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ کیوں اس نے یہ کیا؟ اپنے باپ سے جا کر بھی نفرت نہیں کر پائی، پر غصہ بہت تھا ان پر، جس کی سزا وہ اب خود کو دے رہی تھی۔ حد ہوتی ہے کمرہ پھیلانے کی، جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تاکہ میرا کام بڑھا دے۔ خود کو سمجھتا کیا ہے، کوئی پرائم منسٹر ہو جیسے۔ ایمان غصے میں بڑبڑاتی ساتھ تیزی سے ہاتھ چلاتی صفائی میں مصروف تھی۔ جب آئی تھی اسے کچھ نہیں آتا تھا اور ایک ماہ میں وہ بہت کچھ سیکھ گئی تھی، یہاں تک کہ خود کو اس گھر کی نوکر تسلیم کر لیا تھا اس نے۔ اس پر زیادہ تر صرف زید عالم کے ہی کام ہوتے، باقیوں پر اس کی ساس کم ہی کرنے دیتی تھی۔ اسی بات سے کسی کو مسئلہ نہیں تھا، جانتے تھے زید ہی اسے لایا تھا، اور یہاں نوکر اور بھی بہت تھے، جبکہ اس کے برعکس ایمان پر کام کا بوجھ کم تھا۔ زید واش روم سے نہا کر نکلا تو اسے اپنی تعریف کرتا کام میں مصروف دیکھ کر ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شوہر کی برائی نہیں کرتے، گناہ ملتا ہے۔ آپ کپڑے پہنے؟ اچانک اس کی کان کے پاس سرگوشی کرتا اسے ڈرا گیا۔ ایمان ڈر سے اچھلتی پیچھے ہوئی تھی کہ وہ بیڈ پر گری۔ اسے شرٹ لیس دیکھتی شرم و حیا سے سرخ ہوتی تیزی سے اٹھنے لگی کہ وہ جھکا۔ اس کے بھاگنے کے سارے راستے روک گیا۔ وہ مزید جھکتا کہ ایمان کانپتا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر روکا۔ دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ زید کی قربت ایمان کو کمزور کر دیتی تھی۔ لگتا ہے تمہیں عادت ہو گئی ہے مجھ سے پنگا لے کر خود کو مصیبت میں ڈالنے کی۔ ویسی تمہارے بڑبڑانے والی عادت ابھی نہیں گئی نا؟ اس کا علاج بھی ہے میرے پاس مسز زید۔ اس کے مسز کہنے پر ایمان کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ ایک تو وہ پورا جھکا ہوا تھا، شرٹ لیس، وہ پوری طرح بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ وہ مزید جھکایا تو اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ زید اس کے خوبصورت چہرے پر بکھرتے رنگ دیکھتا ایک پل کو مبہوت ہو گیا۔ مجھے کام ہے۔ اس سے پہلے ایمان اپنی بات مکمل کرتی، زید نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ کبھی تو بیوی ہونے کا حق ادا کرو۔ ملازم والا کام تو بہت اچھے سے کرتی ہو۔ اس نے جھک کر ایمان کے کان میں سرگوشی تھی تو ایمان کا دل دھڑکنے لگا، لیکن اس کی آخری بات اسے بری طرح چبھی تھی۔ چھوڑے مجھے، آپ نفرت کرتے ہیں مجھ سے، پھر کیوں بھول جاتے ہیں؟ ایک نوکر سے اپنی خواہش کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ ایمان بہتے آنسو سے کہتی اسے خود سے دور کرنے لگی۔ زید اس کی بات پر لب بھینچ گیا۔ اسے غصہ بہت آیا، پھر یکدم دور ہوا۔ وہ گہرے سانس لیتی جانے لگی جب اس کا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت میں آیا۔ آدھا کام کر کے جانے کی عادت ہے تمہیں، صفائی مکمل کرو۔ غصے میں کہتا بیڈ پر ٹاول پھینکتا ہر چیز بکھیر رہا تھا۔ ایمان خود پر ضبط کرتی اس کی ہر ظلم کو ایسے ہی تو سہتی آئی تھی۔ وہ اسے اپنے روم کی صفائی کرتا دیکھ کر پھر تنگ کرنے کا سوچتا اٹھا۔ جہاں وہ صفائی کرتی وہ خراب کرتا۔ اسے مزید غصہ آنے لگا۔ ایک کام کریں، آپ خود صفائی کر لیں، بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں۔ وہ غصے میں بولتی جانے لگی۔ زید تیزی سے اس تک پہنچتا، دروازہ بند کرتے اسے وہیں پن کیا۔ دوبارہ ایسا رویہ اختیار کیا تو جان لے لوں گا۔ آپ مجھے اب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ آپ بھی تو مجھ سے برا رویہ رکھتے ہیں، کیا میں انسان نہیں ہوں؟ ایمان روتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کا غصہ نظر انداز کرتی وہ اپنی تکلیف بتانے لگی تھی۔ اتنی آسانی سے نہیں ایمان شبیر، ابھی تو بہت سزا باقی ہے تمہاری۔ اپنے باپ سے ملاقات بھی تو کرنی ہے نا تم نے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا تنزیہ بولا، تو مار دیں، لاش بھیج دیں بابا کے پاس، آپ کا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ وہ غصے میں بولی جب وہ دھاڑا۔
आजकल बहुत जबान चल रही है, संभल कर, ये काट भी सकता हूं मैं। मुझे गुस्सा मत दिलाओ ईमान। उसे गुस्से में देखती वो फिर खौफजदा हुई, सर झुकाकर असबात में सर हिला गई तो वो पीछे हुआ और ईमान तेजी से वहां से निकल गई। बेटा ईमान को भी साथ ले जाओ, ये भी तो हमारे घर का हिस्सा है अब। जैद की माँ ने ईमान को उनके साथ भेजा। जैद, ईमान, सबा एक गाड़ी में थे। वो पीछे बैठी कब से उन दोनों की बातें सुनती गुस्सा जब्त कर रही थी। साथ ही बेइंतहा रोना आया। वो चाह कर भी दिल हल्का नहीं कर सकती थी। जैद बार बार पीछे मिरर से देख रहा था। उसे जलाने के चक्कर में वो आज ज्यादा ही फजूल गोई में मसरूफ रहा, जबकि ईमान बस अपनी जिंदगी को खत्म करने का सोच रही थी। वो थक चुकी थी ये सब सहते हुए। मजीद वो जैद आलम की दूसरी शादी देखकर सह नहीं सकती थी। उसने एक बार भी ईमान से नहीं पूछा कि उसे क्या चाहिए। वो हर चीज सबा की पसंद से ले रहा था। ईमान को अपना आप बेवकूफ लगा। जैद, इसे मैं अपने कपड़े दे दूंगी, 1 साल पुराने हैं, न्यू ही तो पड़े हैं। वैसे भी मैं नहीं पहन रही तो ये इसके लिए सही है, दूसरे लेने की क्या जरूरत है। सबा ने एक नागवार निगाह उसके वजूद पर डाली। जैद ने जब्त से मुट्ठी भेजी। उसे सबा का ये रवैया अच्छा नहीं लगा था। ईमान का हद तक के मारे चेहरा सुर्ख हुआ। उसने तो कभी अपनी न्यू ड्रेस भी इस्तेमाल नहीं किए, कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। अगर जैद आलम का खौफ ना होता तो वो कब की भाग जाती यहां से। खुद के आंसू रोकने के बावजूद भी रोक नहीं पाई। अपना मुंह मोड़ते खुद पर जब्त करने लगी। जैद ने आईने में उसे देख लिया। बेख्तियार उसका दिल शिद्दत से धड़का। ईमान, मेरे लिए पानी लाओगी, बहुत प्यास लगी है। सबा उसे कहती कपड़े देखने लगी। ईमान ने बेख्तियार जैद को देखा जिसकी नजरों में वार्निंग थी। वो खुद ही लेने चला गया। ईमान को वो कहीं अकेला नहीं छोड़ सकता था। सबा को बुरा लगा। ईमान उसे बहुत जहर लगती थी। इसका मासूम हुस्न हमेशा दुश्मन रहा उनके बीच। ईमान की अचानक निगाह अपनी माँ पर गई। वो किसी आदमी के साथ शॉपिंग करने में मसरूफ थी। जब इसका दिल भर आया वो बगैर सोचे समझे उसकी तरफ भागी। उसकी माँ वहां से दूसरी साइड चली गई। ईमान से बहुत दूर थी और रश बहुत ज्यादा था। मॉल में वो भागती हुई उनके पीछे गई। रोने की वजह से आवाज नहीं निकल रही थी। जैद जो आ रहा था उसकी नजर ईमान के भागते हुए देखकर सीधा वो उसकी तरफ भागा। ईमान माँ के करीब पहुंचते खुशी से आगे बढ़ने लगी। जब किसी गैर मर्द को उसकी माँ के गले लगता देखकर वो वहीं रुक गई। दिल तेज धड़क उठा। ये मंजर उसके लिए नया था, अजीब भी। उसका बाप कहाँ था? ये कौन था फिर कब हटा रहे हो शब्बीर अहमद को रास्ते से? अब तो उसकी बेटी भी गायब है। वो उसकी गुमशुदगी में वैसे ही गम में डूबा हुआ है। उसकी पूरी सियासत अब मेरे हवाले होने वाली है। वो दोनों की बातें उसके पैरों तले से जमीन खींच गई। ये कौन सा रूप था उसकी माँ का? मैं तो कहता हूँ उसे रास्ते से हटाने का अच्छा मौका मिला है तुम्हें। वैसे भी उसकी बेटी का कुछ अता पता नहीं, अब तो मर चुकी होगी। शायद शब्बीर अहमद भी अपनी पहली बीवी की आखिरी निशानी को खो चुका है। उन लोगों की बातें ईमान की समझ से परे थी। वो नहीं समझना चाहती थी ये बातें। क्या आप मेरी मॉम नहीं हैं? ईमान की लरसती आवाज पर वो चौंके। उनका हाथ उस तरफ गया। दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। एक पल लगा ईमान की मां को खुद को संभालने में। ईमान, मेरी बच्ची कैसी हो जान? बाबा की पहली बीवी, क्या था ये सब? ईमान अब तक शौक में थी। ईमान, तुम यहां कैसे? तुम तो किडनैप हुई थी ना? आप जानती थी मैं किडनैप? ईमान ने बेयकीनी से उन्हें देखा। वो बचपन से उन्हीं की मोहब्बत पाती आई थी। उन्होंने कभी कोई ऐसा बुरा रवैया नहीं रखा था जिस पर कभी शक हो। हाँ, बस ईमान को छोड़कर वो ज्यादातर अपने कामों में मसरूफ जरूर रहती थी। ईमान, क्या तुम भाग कर आ गई हो? बताओ बेटा, सच क्या है? बाबा कहाँ हैं? वो कैसे हैं? ईमान को उनका झूठ गुस्सा दिला गया। खुद से दूर करती बाप का पूछ बैठी। उसे खुद सामने खड़े शख्स की नजर बुरी लग रही थी। देखो लड़की, ये तुम्हारी माँ नहीं है। ये तुम्हारे बाप की दूसरी बीवी और मेरी पहली बीवी है। अनम, इसका कुछ करो। अगर ये मिल गई तो इसका बाप फिर जिंदा हो जाएगा और हमारे इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा।
نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ سنو ایمان، تمہاری ماں کو تمہارے ہی باپ نے برباد کیا، پھر مجھ سے شادی کی۔ تم پیدا ہوتے ہی ماں کو کھا گئی۔ تمہیں پالنا میری مجبوری تھی، صرف اس جائیداد کے لیے جو تمہارے باپ نے تمہارے نام کر دی۔ اور مجھے کیا ملا؟ اتنے سالوں کا یہ صلہ۔ تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا ایمان، وہ غصے میں کہتی۔ پھوٹ پڑی تھی۔ ایمان ساکت کھڑی انہیں سن رہی تھی۔ جب خود کے بازوؤں پر کسی کے لمس کا احساس ہوا تو وہ تڑپ کر خود کو چھڑوا کر بھاگی۔ وہ شخص اس کے پیچھے بھاگا۔ جب ایمان بھاگتے ہوئے زید عالم سے ٹکرا گئی، وہ جو غصہ کرنے والا تھا، اس کے بھاگنے پر ایمان پہلی بار خود سے اس کے سینے سے لگتی رونے لگی۔ اس کا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ زید، وہ میری موم نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے سب چھوڑ رہے ہیں، بابا نے بھی چھوڑ دیا، تم بھی چھوڑ رہے ہو، میرا کوئی نہیں۔ ایمان آنکھیں کھولو۔ ایمان خوف سے روتی سکتے کی حالت میں بولے جا رہی تھی۔ اچانک گہرے گہرے سانس بھرتی جھول گئی۔ زید اس کی نازک حالت دیکھتا پریشان ہوا۔ وہ پوری بات نہیں جانتا تھا کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ ایسا بول رہی تھی۔ وہ اسے اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر اسے دیکھتے ہی فوراً ایمرجنسی میں لے گئے۔ زید دونوں ہاتھوں میں سر گرائے پریشان بیٹھا تھا۔ آج اس کی حالت نے اسے ڈرا دیا تھا۔ وہ خود کو بھی تو سزا دے رہا تھا، پھر کیوں اسے ایمان کا روتا چہرہ اس کا دکھ محسوس کروا رہا تھا؟ کیوں وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا جبکہ وہ خود اسے تکلیف دے رہا تھا؟ اس نے صبا کو دوسری گاڑی میں گھر بھیج دیا۔ وہ غصے میں چلی گئی۔ اسے ایمان کے لیے تڑپتا دیکھ کر وہ بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ گھر جاتے ہی ہنگامہ کرتی رشتہ توڑ چکی تھی۔ زید کی ماں ایمان کے لیے پریشان ہوئی جب تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ زید نے مٹھیاں بھیجی۔ ایمان کی یہ حالت اچانک کیسے ہوئی؟ اسے پتہ لگوایا تو پتہ چلا اس کی ماں اصلی نہیں سوتیلی ہے، اور وہ غصے میں اس کے باپ کے پاس گیا۔ ایمان ہوش میں نہیں تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا جب تک وہ ہوش میں نہیں آتی وہ خطرے میں ہے۔ اس وقت وہ ایمان کے باپ شبیر احمد کے سامنے کھڑا سرخ نظروں سے انہیں گھور رہا تھا، جبکہ شبیر احمد اس لڑکی کو دیکھ کر انہیں کسی کی یاد آ گئی۔ اس کے نقش کسی سے بہت ملتے تھے۔ آخرکار ہمارا سامنا ہو ہی گیا شبیر احمد۔ شاید تم مجھے نہیں جانتے، پر میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ تمہاری بیٹی میرے پاس ہے۔ زید کی بات پر وہ چونک اٹھے۔ میری بیٹی تمہارے پاس؟ لیکن کیوں؟ تم ہو کون اور کیا چاہتے ہو میری بیٹی سے؟ کہاں ہے وہ؟ وہ تڑپ اٹھے اپنی بیٹی کا سن کر۔ میں کون ہوں؟ وہ استہزائیہ مسکرایا۔ شازیہ عالم، جانتے ہو کون تھی؟ میں اسی کا بھتیجا ہوں، زید عالم۔ جب دوسروں کی بیٹی کو تکلیف دے کر تمہیں سکون مل سکتا ہے، پھر بھی یہ تجربہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کیسا لگا شبیر احمد؟ بیٹی سے دوری نے اتنی جلدی کمزور کر دیا تمہیں؟ زید غصے میں دھاڑا۔ تم شازیہ کے بھتیجے ہو؟ دیکھو زید، میری بیٹی بہت معصوم ہے، اس کے ساتھ کچھ برا مت کرنا۔ میں تم سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ میری بیٹی کو تکلیف مت دینا، اس کا تم سے بھی کوئی رشتہ ہے۔ اوہ، تو تمہیں پتہ چل گیا کہ وہ اب میری بیوی ہے؟ زید طنزیہ انداز میں اس کے گھبرائے پریشان چہرے کو دیکھتا بولا۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی رہی، پھر شبیر احمد کی آواز نے سکوت توڑا۔ تم نے مجھے تکلیف دینے کے لیے میری معصوم بیٹی کو تکلیف دی، لیکن کیا تم جانتے ہو اس کا تم سے ایک اور رشتہ بھی ہے؟ شاید نہیں جانتے، تبھی تم نے یہ راستہ چنا۔ وہ میری اور شازیہ کی بیٹی ہے۔ ہاں مانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا اس کے ساتھ، دھوکہ دیا اسے، پر ان سب میں مجھے سچ میں محبت ہو گئی تھی۔ میں نے معافی مانگ کر اس سے چھپ کر نکاح کیا تھا، کیونکہ میرا باپ اس شادی کے حق میں نہیں تھا۔ ان کی سازش میں شازیہ پھنس گئی۔ ایمان کی پیدائش راز تھی، اور یہ بات صرف میں، تمہارے ماں باپ اور دادا جانتے تھے۔ بس شازیہ سے بیٹی چھین کر میں یہ ملک چھوڑ کر چلا گیا، اسی ڈر کی وجہ سے کہیں میری بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن شاید میں اندھا ہو چکا تھا۔ شازیہ بھی کسی کی بیٹی تھی۔ آج اپنی بیٹی پر گزرنے کے بعد پتہ چلا۔ میں تم سے اپنے ہر کیے گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ پلیز میری بچی کو خوش رکھو زید، اسے دھوکہ مت دینا، وہ بہت معصوم ہے، برداشت نہیں کر پائے گی۔ شبیر احمد اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہے۔
जैद आलम कुछ लम्हे साकित बैठा रहा। अब तक वो ईमान को कितनी तकलीफ दे चुका था। उसने अपनी जान से प्यारी पुप्पो की बेटी को तकलीफ दी, जिसने बेटी को देखा तक नहीं, उसी के लिए तड़पती चली गई। घर पहुंचते माँ से नाराज हुआ और उनसे शिकवा किया कि क्यों उससे ये बात छुपाई। वो कैसे ईमान का सामना करेगा अब। जब उसे पता चला ईमान को होश आ चुका है, पर वो खामोश है, कोई बात नहीं कर रही, बस आंखें खुले छत को घूर रही है। ईमान, तुम ठीक हो? किसी की प्यार भरी सरगोशी पर उसने आंखें झपकी। उसे देखते बेख्तियार उसके आंसू बहे और तकिए में जज्ब हो गए। जैद ने नरमी से उसके आंसू साफ किए। आप मुझे नफरत करते हैं तो प्लीज मुझे मार दें, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं खुद को खत्म कर लूंगी। हाँ, खत्म कर दूंगी। कोई नहीं है मेरे पास अपना, कोई भी नहीं। ईमान, ईमान, सांस लो। नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं तुम्हारे पास। उसकी हालत फिर खराब होने लगी और वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। ईमान को लगा उसका सांस बंद हो जाएगा। थोड़ी देर बाद फिर होश में आई तो इस बार उसका बाप था वहां। ईमान उनसे मिलती खूब रोई। जब दिल थोड़ा हल्का हुआ तो उसने जैद आलम को ढूंढा। उसका बाप समझ गया था उसकी आंखें किसकी तलाश में हैं। वो यहाँ नहीं है। उसने कहा है कि वो अब तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। मैं लेने आया हूं मेरी बेटी को, चलें? लेकिन बाबा, उसने मुझे छोड़ दिया ना। वो शादी कर रहा है बाबा। मैं मोहब्बत करती हूँ, वो नहीं समझता। मैंने सब सीख लिया है, मुझे सब काम आते हैं, फिर भी उसने छोड़ दिया। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? ईमान का तड़प कर रोना उसके बाप का कलेजा चीर गया। वो खुद बेबस थे, क्या करते? वो खुद मजबूर थे। जैद आलम उसे छोड़कर चला गया था। ईमान को बाप के पास आए 1 माह हो गया। इस बीच हवेली में किसी ने उससे राब्ता नहीं किया, यहां तक कि उस जालिम शख्स ने भी नहीं पूछा। इसकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। शबीर अहमद अक्सर परेशान रहते। ईमान का खामोश हो जाना जैद के लिए मोहब्बत वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। एक बार कोशिश की पर जैद ने जवाब नहीं दिया। वो किसी से भी नहीं मिलना चाहता। ईमान को पता चल गया उसकी असली मां कौन थी। वो अपने ननियाल रहकर भी दूर रही। उसे वहां सुकून जरूर मिला था। जैद, ईमान बाप के बहुत कहने पर उनके साथ रेस्टोरेंट में आई थी। जब वॉशरूम से बाहर निकली तो सामने उसे दिखाई दिया। दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। अचानक माहौल में चीरती हुई गोली के लगने पर ईमान की चीख बेसाख्ता थी। जैद आलम, शबीर अहमद दोनों ने मिलकर ईमान को पुकारा। जैद तेजी से उस तक पहुंचा और उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर खतरे से बाहर की खबर सुना गया तो वो अंदर गया। वो कब से उसके पास बैठा था। वो चाहकर भी ईमान के करीब नहीं आ सकता था। उसे गिल्ट था कि उसने इसे बहुत तकलीफ दी थी। वो खुद को दूर रखकर उसकी तकलीफ कम करने की कोशिश कर रहा था, पर इसमें दोनों को तकलीफ हुई। वो जानता था ईमान उससे मोहब्बत करती है और वो भी करने लगा था। पहले दिन से ईमान उसके दिल में बस चुकी थी, पर खुद की अना उसे दूर रखे हुए थी। शबीर अहमद का मिलना वो समझ गया। उसने खुद को ईमान से दूर रखा। वो थोड़ा संभल जाए, वरना वो दोनों नहीं रह सकते थे एक दूसरे के बगैर। जैद, आप आ गए। मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। प्लीज आप मुझे मत छोड़ें। आप भले दूसरी शादी कर लें, मुझे नौकर बनाकर ही रख लें। मुझे सब काम आते हैं अब। बहुत बोलती हो। काम तो बहुत है तुम्हारे लिए। मेरा कमरा बहुत खराब हालत में है। तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब इसकी मालकन आएगी। ईमान होश में आती जैद को खुद के करीब देखती बेख्तियार रोते अपने तड़पने की वजह बता गई। जैद ने मुस्कुराकर उसके होंठों पर उंगली रखी, फिर झुका। मोहब्बत तो मुझे भी हो गई अपने दुश्मन से। अब तुम्हें हमेशा के लिए अपनी कैद में रखना चाहता हूं। मोहब्बत से कहता वो झुककर उसके माथे पर मोहब्बत की मोहर लगाई। ईमान मुस्कुराते हुए आंखें मोड़ गई। वो उसी के साथ लेट गया। दोनों एक दूसरे के हिसार में पुरसकून थे। जिंदगी में बहुत इम्तिहान लिए, पर वो एक दूसरे की मोहब्बत में कैद हो गए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी
آپ کو وقت پر ملتی رہے۔